Greetings, dear students. Dear students, I hope all of you have done your work also. Dear students, today we will start with a new chapter, that is poem, and the name of the poem is Somebody's Mother. This poem is written by Mary Doe Barron. And this poem is about an old frail woman waiting to cross a crowded street. She is unable to do so for fear of slipping on the snow and falling under some carriage wheels or horses' feet. As she waits, no one notices her anxiety and fear on that crowded street. People pass her by, unheeding of her worry. A group of schoolboys rushes, chattering and laughing, through the street. Now the school is over. One cheerful little boy in the group notices the old lady. He quietly and gently guides her across the street without making a great show of helping her. Neither of them knows the other's name, but her heart is happy and well content, for he has helped somebody's mother and hopes that someday someone would be there to help his own mother when she is old and feeble and he can't be there with her. Meanwhile, the old lady remembers the strange little boy with gratitude, and that night, when she prays to God, she asks that he may bless the noble boy, who must be the pride and joy of his mother's heart. This poem tells us two things. It encourages compassion even to the strangers, and it also tells us that we receive what we give to others in this world. What goes round, what comes round. The boy gave help and the old lady gave him blessings. Okay, let's start with the reading of the poem to better understand it. The woman was old and red and grey and bent with the chill of the winter's day. The street was wet with the recent snow, and the woman's feet were aged and slow. इस पोम में पोइट क्या कह रहा है कि जो लेडी थी वो कैसी थी, ओल्ड थी. उसने रैग्ड क्या होता है, ओल्ड एंड टोन क्लोथ, फटे पुराने कपड़े डाल रखे थे, और उसके हेयर कैसे थे, ग्रे कलर की हेयर थी. एंड बेंट विद द चिल ऑफ द विंटर्स डे, और जो सर्दी के कारण, सर्दी के दिनों में जैसे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, उसकी पीठ जो थी उसकी वजह से झुक गई थी. बेंट क्या होता है, बो यानी कि झुक जाना. द स्ट्रीट वॉज वेट विद अ रीसेंट स्नो, वहाँ पर क्या था, बर्फ़ गिर रही थी, और अब बर्फ़ गिरने के कारण जो वहाँ की गलियाँ थी, जो स्ट्रीट थी, वो बहुत ही गीली थी, क्योंकि बर्फ़ से ढकी हुई थी, इस वजह से वो गीली हो रही थी. एंड द वुमेन्स फीट वर एज्ड एंड स्लो, और एज्ड होने के कारण वो जो लेडी थी वो ओल्ड थी ही, उसकी वजह से बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी. She stood at the crossing and waited long, alone, uncared
4. Amid the throng of human beings who passed her by, none heeded the glance of her anxious eyes. She stood at the crossing and waited long. वो रोड को क्रॉस करने के लिए बहुत देर से वहां पर खड़ी थी, बहुत देर तक वेट कर रही थी. अलोन अनकेयर्ड, और कोई भी उसकी मतलब उसके साथ कोई भी नहीं था और कोई उसका ध्यान भी नहीं कर रहा था या उसकी तरफ कोई देख भी नहीं रहा था. एमिड द थ्रोंग, थ्रोंग क्या होता है? क्राउड ऑफ पीपल, बहुत से लोगों की भीड़ जा रही थी बट उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया. ऑफ ह्यूमन बींग्स हु पास्ड हर बाय, नन हीडिड, हीडिड मतलब नोटिस करना या उसकी तरफ अटेंशन पे करना. द ग्लैंस, ग्लैंस मतलब देखना. ऑफ हर एनेक्शियस आइज, एनेक्शियस क्या होता है? वरिड, यानी कि उसको जो थी चिंतित थी वो लेडी कि मैं रोड को क्रॉस कैसे करूं. किस लिए? क्योंकि जो रोड थी वो स्नो से भरी हुई थी. बट पूरी जितनी भी भीड़ जा रही थी उनमें से किसी भी पर्सन ने उसकी तरफ अटेंशन पे नहीं की कि वो उसको रोड को क्रॉस करा दें. नेक्स्ट लाइन्स. डाउन द स्ट्रीट with laughter and shout, glad in the freedom of school let out, came the boys like a flock of sheep, hailing the snow piled white and deep. अब इसमें देखिए, डाउन द स्ट्रीट, अब जो नीचे सड़क की तरफ, लाफर एंड शाउट, हंसते हुए चिल्लाते हुए, जो था कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स आ रहे थे, जो स्कूल के बच्चे थे वो आ रहे थे. ऐसा लग रहा था जैसे कि बिल्कुल उनको किसी तरह की कोई फ्रीडम मिल गई हो, उसकी वजह से वो बहुत ही खुश थे. और वो बॉयज आ कैसे रहे थे? ऐसे आ रहे थे जैसे कि फ्लोक ऑफ शीप, यानी कि जो शीप का यानी उनका जो झुंड होता है वैसे बच्चे जो थे वहां पर आ रहे थे, बॉयज जो थे आ रहे थे. हेलिंग द स्नो पाइल्ड वाइट एंड डीप. अब हेलिंग क्या होता है? ग्रीटिंग्स, सल्यूट करना किसी चीज को. और पाइल्ड क्या होता है? शार्प. पास द वुमेन सो ओल्ड एंड ग्रे, hastened the children on their way. अब जो वो बॉयज थे वो ऐसे लग रहा था जैसे कि उस स्नो का जो था उसको ग्रीटिंग कर रहे थे, उनका स्वागत कर रहे थे. और जो कि कैसी थी? वाइट कलर की थी. जो स्नो थी वो कैसी थी? वाइट थी. और बर्फ के बहुत सारे ढेर वहां पर बन चुके थे. और वो सब के सब कैसे निकल गए? उस लेडी को पास करते हुए निकल गए, उसको उसके पास से होकर के चले गए, यानी कि जल्दबाजी में जैसे चल जाते हैं ना. हैसन क्या होता है? इन हरी, जल्दबाजी में. जो चिल्ड्रन थे उस रास्ते से उसको देखा भी नहीं और वहां से चले गए. nor offered a helping hand to her, so meek, so timid, afraid to stay, lest the carriage wheels or horses' feet should crowd her down in the slippery street. अब उसने क्या देखा कि बहुत से बॉयज जो थे वो वहां से गए, लेकिन किसी ने भी उस ओल्ड लेडी की तरफ ध्यान नहीं दिया. वो सब उसको देखते हुए उसकी साइड से चले गए. उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि वहां पर कोई खड़ा भी है. ना ही उसको किसी ने ऑफर किया. यहाँ लिखा नॉर ऑफर्ड अ हेल्पिंग हैंड, किसी ने भी उसको हेल्प करने के लिए ऑफर भी नहीं किया, उसको मदद करने की कोशिश नहीं की. मीक क्या होता है? हम्बल. और टिमिड, शाय. सो मीक, सो टिमिड, अफ्रेड टू स्टे. अब वो वहां पर जो थी कैसे खड़ी हुई थी? एकदम शाई होकर के, डर करके खड़ी थी, कमजोर दिख रही थी. उसको डर किस बात का लग रहा था? वहां से रोड को क्रॉस करने का. उसको ये लगा कि अगर वो वहां से चलती है तो वहां पर जो स्लिपरी रोड है उसके कारण से वो गिर ना जाए, वहां पर जो गाड़ी के पहिए हैं उनके नीचे ना आ जाए या फिर हॉर्सेस के फीट के नीचे ना आ जाए. इसी वजह से उस स्लिपरी स्ट्रीट पर वो चलने के लिए डर रही थी. एट लास्ट केम वन ऑफ द मैरी ट्रूप, the gayest lady of all the group. He paused
beside her and whispered low, I will help you cross if you wish to go. ट्रूप क्या होता है? ग्रुप ऑफ बॉयज। और गेस्ट आपको, गेस्ट क्या होता है? मोस्ट चीयरफुल। जो बॉयज का ग्रुप जा रहा था लास्ट में, उसमें से एक लड़का जो था वो बाहर निकल के आया, उस लेडी के पास गया और बहुत ही खुश होकर के उसके पास आता है और उसके पास जाता है और उसको धीरे से क्या कहता है कि वो उसकी हेल्प करेगा रोड को क्रॉस करने में, अगर वो चाहती है तो। अगर उसको ऐसा लग रहा है कि उसको रोड को क्रॉस करानी चाहिए, तो उस लड़के ने क्या बोला कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। हर एज्ड हैंड ऑन हिज स्ट्रॉन्ग यंग आर्म शी प्लेस्ड एंड सो विदाउट हर्ट और हार्म। अब उसने क्या किया, जो उसका हाथ था, लेडी का जो हाथ था, उस लड़के के आर्म के ऊपर रख दिया और उस लड़के ने उसके कांपते हुए पैरों को बिना चोट के, बिना नुकसान पहुंचाए उसको रोड क्रॉस करवा दी। He guided the trembling feet along, prouded that his own were firm and strong. ये मैंने आपको बताया अभी कि जब उस बॉय के ऊपर उसने हाथ रखा तो जो उसके कांपते हुए पैर थे, ट्रेमलिंग क्या होता है? कांपते हुए पैरों को, उसने उसको बिना किसी नुकसान पहुंचाए, विदाउट हर्ट और हार्म, उस लेडी को रोड को क्रॉस करवा दिया। प्राउड दैट हिज ओन वर फर्म एंड स्ट्रॉन्ग, then back again to his friends he went, his young heart happy and well content. Content क्या होता है? satisfied होना, संतुष्ट होना। अब उसको सड़क पार कराने के बाद, उस लेडी को सड़क पार कराने के बाद उसको कैसा लगा? प्राउड फील हुआ खुद के ऊपर कि उसने एक अच्छा काम किया है। उसके बाद उसने क्या किया? वापस अपने फ्रेंड्स के पास चला गया और उसको क्या लगा कि जो भी उसने किया उससे वो बहुत ही ज्यादा खुश था, बहुत ही ज्यादा संतुष्ट था, सेटिस्फाइड था। शी इज somebody's mother, boys you know, for all she is aged and poor and slow, and I hope some fellow will lend a hand to help my mother, you understand. अब वो बॉय क्या कह रहा है और बॉयज को समझा रहा है कि उन लड़कों को क्या समझाता है कि जो वो ओल्ड लेडी थी, उन्होंने पूछा कि तुमने उसकी हेल्प क्यों की, तो क्या कहता है अपने फ्रेंड्स को कि जो ओल्ड लेडी थी वो भी किसी की माँ थी। अब भले ही वो बूढ़ी हो गई है या गरीब थी, पुअर थी या धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन वो ये चाहती थी कि मुझे कोई रोड क्रॉस करा दे। अब वो क्या कह रहा है आगे कि उसको क्या आशा हुई कि किसी दिन या कुछ समय के लिए कोई तो मेरी माँ की मदद करेगा, उसके लिए आगे हाथ बढ़ाएगा। यहाँ पर वो उसने क्या सोच करके उसकी मदद करी कि हो सकता है कि कभी उसकी जगह पर उसकी मदर भी हो। फाइन, लास्ट देखिए। इफ एवर शी इज पुअर एंड ओल्ड एंड ग्रे, when her own dear boy is far away, and somebody's mother bowed low her head in her home that night, and the prayer she said was, God be kind to the noble boy who is somebody's son and pride and joy. Noble means kind, और प्राइड का मतलब क्या होता है कि प्राउड करना। अब वो क्या कह रहा है कि अगर कभी भी वो बूढ़ी होगी, यानी यहाँ पर वो अपनी मदर की बात कर रहा है कि हो सकता है कभी मेरी माँ भी ऐसी हो, तो वो क्या कह रहा है कि कभी वो भी बूढ़ी होगी, गरीब हो सकती है, उसके भी बाल जो है वो ग्रे हो जाएंगे और उसका खुद का लड़का कहीं दूर रहेगा, तो उस बूढ़ी महिला के घर पर उस रात जो कि किसी की माँ थी, उसने अपना सिर झुकाकर भगवान से प्रार्थना की। अब उस लेडी की बात हो रही है वहां पर जो किसी और की मदर थी। उसने क्या किया? उसने गॉड के आगे प्रे की कि जो वो लड़का था जिसने मेरी हेल्प की, उसके प्रति दया करो। जो किसी का पुत्र था या किसी के लिए प्राइड था, ईगो था किसी का, और उसको किसी की खुशी था, उसके लिए वो
अच्छी प्रे कर रही है, उसको विश दे रही है कि उसने हेल्प करी है तो आप भी उसकी हेल्प करना या उसकी माँ की हेल्प करना। तो ये विश दी उस ओल्ड लेडी ने। सो आप इस पोम से हमने क्या मोरल जो है हमें मिला, क्या लेसन हमने लर्न किया कि हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो किसी और की मदर है या किसी और का ब्रदर है या किसी और का फ्रेंड है। तो वहाँ यहाँ पर ये पोम हमें क्या बता रही है कि हमें इवन अगर वो पर्सन जो है अननोन है तो भी हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। So dear students, this is the poem Somebody's Mother. If you have any query, then write in the comment box. Thank you.